Good morning, students. Welcome to the first lecture of your physics chapter number 3, current electricity. Up till now, what we have studied was part of electrostatics. That means the charges which we were studying were not moving. From this chapter, we'll be studying the properties of moving charges. So, the branch of physics which deals with the properties of moving charges is called current electricity. So, when we say current electricity, so we have to first know what is current. Okay, so electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. So first of all, you should know what is a cross section. Okay, suppose we have a cylinder. Suppose we have a cylinder. We'll draw it like this. We have a cylinder. If we cut this cylinder into half, that means we have a plane which is parallel to this face and perpendicular to the sides of the cylinder. So what we'll get here is a section like a circle. So if I want to see it from top, it will look like a circle. So this is the cross section, है ना? So if many students have doubt because at this stage you have not studied about sectioning or something like that. So this is the cross section. Okay, so this is a cross section, and we have defined that current is the rate of the flow of charges through a particular cross section of a conductor. Okay, so again I will tell it to you. Electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. Okay, suppose I'll draw again a conductor. Now what is a conductor? Which allows the flow of charges. It is conductor. Okay, suppose we have imagined a cylindrical conductor. So any point of time, suppose I take this cross section, okay, and at this point of time, if we apply some potential difference, suppose this is phase A and this is phase B, if we apply some potential difference in this conductor, that means potential difference apply karna means we have connected this to a power source, है ना? वो सेल भी हो सकता है, बैटरी हो सकते हैं, AC सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं. So suppose we have connected this conductor, है ना? तो this is the positive terminal, this is the negative terminal. इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम नेगेटिव. से इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट जो जनरेट होगी इट विल बी फ्रॉम ए टू बी. व्हाट वी हैव डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ. जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट को I से शो करते हैं, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना? दैट मीन्स द टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसा जब लिख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज I एवरेज, है ना? व्हाट इज दिस? इट इज I एवरेज. अब क्या है करंट, क्या है यहाँ पे हमने जो मान के चला है कि करंट स्टडी है. व्हाट इज स्टडी करंट? स्टडी करंट कभी स्टडी करंट आप अगर स्टडी फ्लो ऑफ अ रिवर बोले, है ना? पानी, अगर नदी में पानी बह रही है, अगर वो शांत नदी है तो पानी के बहता हुआ आप फील करोगे कि ये बिल्कुल बिना 2-3 डायरेक्शन में जाए वो शांति से बह रहा है, तो दैट इज़ स्टडी फ्लो.
है ना। वही पानी अगर बहुत तेज़ बहाव के साथ आएगा तो इट विल बी फ्लोइंग इन मैनी डायरेक्शंस और आवाज़ करते हुए बहेगी। सो दैट इज़ टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो हम टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेडी फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, तब तो ये वैलिड है। लेकिन हमेशा कई बार ऐसा होता है कि करंट स्टेडी फ्लो नहीं करता है, तो उसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि दैट इज़ टोटल चार्ज की जगह हम क्या डाल सकते हैं, डेल्टा क्यू ऑन डेल्टा टी। Okay, so currents are not always steady and hence more generally we define current as follows. Let delta Q be the net charge flowing across a cross section of a conductor during the time interval delta t. That means between times t and t plus delta t. तो total time taken क्या होगा, t plus delta t minus delta t, यानी कि delta t। तब हम current ये this is I average, okay, that is delta Q upon डेल्टा टी। लेकिन कई बार हमने इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट को निकालना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब हम क्या करते हैं, वो जो डेल्टा टी है उसको जितना छोटा हो सके उतना कोशिश करते हैं कि एकदम छोटा सा डेल्टा टी हो। तब हम आई इंस्टेंटेनियस को हम लिख सकते हैं I is equal to limit delta t tends to 0 delta q upon delta t। और ये क्या हुआ, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। सो द करंट कैन बी इंस्टेंटेनियस करंट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू current. So please remember this. And so what is, now we have understood what is current, this is rate of flow of charge. Okay, now what is the SI unit, SI unit of current? SI unit of current is ampere, SI unit, and practical unit of current is ampere A, and this is a practical unit also. Okay, so what is 1 ampere? 1 ampere can be defined as the current through a conductor is said to be of 1 ampere if 1 coulomb charge is flowing per second through any cross section of the conductor। यानी per second इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 coulomb, है ना। तो यानी 1 ampere is equal to 1 कूलम पर सेकेंड, है ना। तो हम कूलम पर सेकेंड तो नहीं लेते हैं, इसका नाम ही हमने एम्पियर रख दिया है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर सेकेंड। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट current, some basic SI unit of current and all those things. Now what type of quantity is current? Is it a scalar quantity or a vector quantity? ना उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम, इसको मैं अभी रब नहीं करूँगा समझने के लिए। सो सपोज एक तार ऐसा आया, इसमें एक करंट है I1, एक तार ऐसा आया, इसमें करंट है I2, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और ये दोनों जुड़ के ऐसा करंट I3। सो करंट is not a vector quantity. Why it is not a vector quantity? Because it does not follow द वेक्टर एडिशन रूल्स। ओके, जैसे कि इसमें हमने बोला कि इसका कोई आई का हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, I1 का और I2 का निकालेंगे, ऐसा नहीं है। करंट को हम डायरेक्टली हम प्लस ऐड कर सकते हैं। I3 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बट एक चीज़ और है, it follows the direction, it has two directions, a negative direction or a positive direction. Okay, so
इफ़ I1 ऐसा ना हो के ऐसा होता तब ये वैलिड नहीं होता, है ना। यहाँ पे क्या होता, I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ये हो जाता है ना। सो इट फॉलोज द डायरेक्शन बट it does not, this vector laws of addition does not apply on this. So the current as per your book is a scalar quantity, but more appropriately इसको tensor quantity बोलते हैं because it has directions, positive and negative direction. So it is a tensor quantity, but हम उसे अभी पढ़ेंगे. Current is a scalar quantity. Though the electric current represents the direction of flow of positive charge, yet it is treated as scalar quantity because it does not it follows the scalar addition and not the laws of vector addition. Okay, तो द एंगल बिटवीन, अगर कोई तार ऐसे अलग अलग एंगल में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस एंगल से, उन तारों के एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर में क्या करंट फ्लो हो रही है. ओके, नाउ व्हाट आर द करंट कैरियर्स, उसको हमको समझना है. करंट कैरियर्स, है ना. नाउ करंट कैरियर्स इन मेटलिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर में या कंडक्टर में करंट कैरियर्स क्या होता है. मेटल्स में क्या होता है, मेटल इज मेड अप ऑफ लॉट मैनी एटम्स एंड अगर वो एलॉय है तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना. सो एटम्स एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. मेटल्स में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. तो सपोज़ मैं इसी के लिए, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. तो सपोज़ एक एटम को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ. सो दिस इज़ एन एटम और साइड में वैसा ही एक और एटम होगा. नाउ the electron on the outermost shell which are called valence electrons, they are called valence electrons. जो electrons हैं जो outermost shell में हैं वो valence electrons हैं, और जो उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम सेंटर में है. So what happens, because it is very closely packed, the valence electrons are free to jump from one atom to the other, है ना. It can jump from one atom to the other. और इसलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे कैन जम्प फ्रॉम वन एटम टू अदर. दैट मीन्स दे आर मूविंग. द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. एंड इलेक्ट्रॉन हैज सम चार्ज. इट हैज चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. दैट मीन्स द चार्ज कैन नाउ मूव. In conductors the charge can move, and the free electrons in the conductor हम सोचते हैं कि थोड़े बहुत होंगे, 200-400 1000 2000 पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम देखें तो अगर 1 मीटर क्यूब है उसमें 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब. यानी अगर एक मीटर में इतना ही है, इतना बड़ा जो डब्बा है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻29 टू द ऑर्डर ऑफ दैट. वी हैव दैट मच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो द करंट कैरियर हियर इज दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इन सॉलिड कंडक्टर्स, द मेटल्स, द करंट कैरियर्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are not firmly attached to the individual atoms. They are not firmly attached to the individual atoms, and they are free to move throughout the volume of the conductor. They are free to move through the volume. So in metallic conductors, the current carriers are free electrons. है ना? They are the free electrons. But what happens to the protons? Protons also have charge. They are very firmly attached. है ना? ये move नहीं कर सकते. They cannot move. जो प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस में हैं, दे आर वेरी फर्मली अटैच. वो मूव नहीं कर सकते. वो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन ऑल्सो नॉट मूव. सो अगेन आई विल टेल यू, चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसको एकदम अच्छे से याद रखिए. अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं. सेमी कंडक्टर
जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इसमें चार्ज कैरियर्स दो होते हैं, उसको बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तब पढ़ेंगे। सो इन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम करंट कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। ये इसको हम पढ़ेंगे। इंसुलेटर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर में चार्ज कैरियर्स नहीं के बराबर होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये अलाउ नहीं करते हैं, तो उनके बारे में उनके पास में ज़्यादा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है, कैरियर्स, है ना। अब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दोज लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो द लिक्विड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है हमारे लिए NaCl, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl। तो क्या होता है NaCl को अगर आप पानी में घोल दो तो क्या हो जाता है ना। हाँ, अगर पानी में इसको घोल देते हैं NaCl को तो क्या होगा, ये इस लिक्विड में NaCl विल कन्वर्ट इनटू Na+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ओके, सो ये इसको हम कैटायन बोलेंगे, उसको एनायन बोलेंगे। ओके, सो Na+ आयन को हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और क्लोरीन को नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम दो इसमें इलेक्ट्रोड्स अंदर डाल दें, इसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स डाल दें, है ना, इट विल बी जॉइन टू अ बैटरी। तो इसमें क्या होगा कि जो Na+ आयन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और Cl नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उससे चिपक जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो यहाँ पे चार्ज कैरियर, करंट कैरियर कौन से होंगे? दोनों आयन है, Na+ एनायन एंड कैटायन, दे आर द करंट कैरियर्स हियर। सो द लिक्विड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl, CuSO4. In NaCl, current carriers are positively charged Na+ ion or cations and negatively charged Cl- ion और anions। तो ये तो बात हुई करंट कैरियर्स की। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉर्म होता है इन अ कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, हाउ इट डेवलप्स एंड हाउ इट फ्लोज, लेट अस स्टडी अबाउट दैट। मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि दिस कंडक्टर्स आर मेड ऑफ many एटम्स, and these atoms are very closely packed in conductor, and because of this closely packed atoms in the conductor, the valence electrons in the outer shell of this atoms, they are free to move, and they actually move from one atom to the other, they jump from one atom to the other, and this is why they are called free electrons. So suppose अगर हमने ये कंडक्टर है, this is one conductor, cylindrical conductor, और अभी इसमें हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में हैं? द आंसर इज नो, दे आर नॉट एट रेस्ट, because of the they are at certain temperature. Right now they are at say room temperature, थोड़ा और कम हो जाएंगे। So the electrons are not at rest, और कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं। हाँ, बोले कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में हो सकता है कि दे विल बी एट रेस्ट, -273 K पे शायद वो रेस्ट पे रहें, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा भी उनको थर्मल एनर्जी मिलती है तो दे आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, एंड दे आर मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी, है किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एंड दिस वेलोसिटी इज़ गेन बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, है ना। यहाँ पे इसको थर्मल जो एनर्जी है उस टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में है उसके कारण में इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो गया, एक्साइट हो गया, और दे आर मूविंग। सो दे आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, हमारा टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? इट डील्स विद द मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, मूविंग चार्जेस हैं, तो इसके कारण इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रहा है इसके अंदर, क्या करंट पास हो रहा है इसमें? द आंसर इज़ नो, क्योंकि आप किसी एक कंडक्टर को आप छोड़ोगे तो आपको शॉक थोड़ी लग रहा है, अगर वो किसी से कनेक्टेड नहीं है तो शॉक तो नहीं लग रहा है उसमें,
है ना। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं बट उसके अंदर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। तो वो क्यों हो रहा है? सपोज देयर इज वन इलेक्ट्रॉन हियर, इट इज़ मूविंग विद अ थर्मल एनर्जी लाइक दिस, थर्मल एनर्जी का इधर मूव कर रहा है। इसके अंदर में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत रैंडमली किसी सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। सो दे आर रैंडमली मूविंग एट डायरेक्शन, या यही इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अल्टीमेटली अपने वापस जगह पे आ गया। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया इस इलेक्ट्रॉन का, ये भी इधर से आ रहा है लेकिन इसके आगे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है। सो अल्टीमेटली दे आर मूविंग इन अ वेरी रैंडम फैशन, और रैंडम फैशन में जब मूव कर रहे हैं तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नेट टोटल वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन के इस कंडक्टर के अंदर, दैट कम्स टू ज़ीरो। यानी थर्मल वेलोसिटीज़ के कारण, थर्मल मोशन के कारण उसके अंदर की जो टोटल वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स ज़ीरो। और वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो गया थर्मल, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो कोई जो भी फ्लो ऑफ चार्जेस हैं एक दूसरे को वो कैंसल आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो क्रॉस सेक्शन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो नहीं होगा तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। सो दिस इज़ वाई जब ये किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इन दोनों एंड में, तो इसके अंदर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? सपोज हम समझने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्क को एक एंड में लगा देते हैं और नेगेटिवली चार्ज डिस्क को दूसरे एंड में लगा देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज डिस्क और नेगेटिवली चार्ज दोनों में चार्ज सेम रहेगा। सपोज़ एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है डाइलेक्ट्रिक का, एक डाइलेक्ट्रिक है, एक प्लेट है, जैसे प्लास्टिक का प्लेट मान लो, वो इधर लगा दिया जिसमें नेगेटिवली चार्ज है और इधर लगा दिया जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। उसमें चार्ज कितना है? सपोज़ इसमें चार्ज है +Q और -Q। सपोज़ यहाँ पे हमने लगा दिया एक +Q चार्ज का डाइलेक्ट्रिक और इधर लगा दिया -Q चार्ज का डाइलेक्ट्रिक। नाउ हमने बोला एक चीज़ पढ़ी थी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। वो कब किस कंडीशन में पढ़ा था? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ा था, जब चार्जेस मूव नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट बी ज़ीरो, है ना। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। और जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आएगा तब उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो व्हाट विल हैपन इज, हमने एक +Q चार्ज इधर लगा दिया, -Q चार्ज इधर लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू अ नेगेटिव प्लेट, है ना। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ओके, अब क्या हुआ? अब ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में है। अब इसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं पे भी होंगे, सपोज़ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल मूव। किधर मूव करेंगे? दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव प्लेट। सो देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो कोई फ्लो नहीं कर सकता, अभी फ्लो सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फ्लो करने लगेंगे। कब तक फ्लो करने लगेंगे? जब तक ये जो दोनों प्लेट में जो चार्जेस हैं न्यूट्रलाइज ना हो जाए। जैसे कि इधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस जगह से मूव करेगा तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसको ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसको बाय इंडक्शन ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये चार्जेस तब तक मूव करेंगे जब तक एक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना आ जाए, जब ये चार्जेस पूरे ख़त्म
ना हो जाए तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और जैसे यहाँ पे चार्ज ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद हो जाएंगे, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। थोड़े देर के लिए वहाँ पे ट्रांजिएंट करंट बहा, है ना, उस फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा एक ट्रांजिएंट करंट बहा और बह के यहाँ के जो चार्जेस हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। अभी हमने इसमें स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं दिए हैं, हम एक स्टेडी फ्लो ऑफ पोटेंशियल, एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है। हमको जब करंट चलाना है, एक स्टेडी करंट चलाना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, हम इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे अब मैंने पॉजिटिव साइड इस साइड लगा दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट कौन सा होगा, ये होगा, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे बैटरी का काम क्या है, ये बैटरी का काम क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी इट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, है ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते रहता है, ये सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो करता है बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे उसको स्पीड मिला, एक्सेलरेट हुआ, वो यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्लो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से आया, यहाँ आया, वापस बैटरी में चले गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेडी एनर्जी देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ये काम है बैटरी का या सेल का या पावर सोर्स का। सो इफ़ यू अप्लाई अ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर बाय कनेक्टिंग अ सेल और अ बैटरी अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो ये स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बहते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहते रहेंगे, है ना। तो ये बहते रहेंगे हमेशा, जब तक ये सेल से कनेक्टेड है तो ये बहते रहेंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, यानी इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल, flowing through the conductor, coming out of the positive terminal and going to the positive end of the spoon. The direction of electron is from negative side to positive side. Electrons कैसे flow कर रहे हैं, from negative end to the positive end. थोड़ा सा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ से फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। बट अपना कन्वेंशनल जो करंट है, कन्वेंशनल करंट की हम जब बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। करंट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। यानी कि अगर मैं ये इसको A मानता हूँ और इसको B मानता हूँ, इस एंड को, हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये है VA इज़ हायर और VB इज़ लोअर। तो हम जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि पानी का बहाव या और भी कुछ चीज़ों का टेम्परेचर का बहाव, वो क्या होता है, पानी का बहाव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पानी कैसे बहेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, या टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाएगी। इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे अपवाद हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स actually move from lower potential, electrons move from the direction of electrons movement is from lower potential to the higher potential, बट हमको उस कन्वेंशन पे चलना है, इसलिए हम कन्वेंशनल करंट को हम क्या बोलते हैं, दिखाते हैं I से, और इसका डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, it is from higher potential to the lower potential. Direction of current, conventional current is from higher potential to the lower potential, but actually the electron is moving from lower potential to the higher potential. How it is moving? Because it is connected to a battery which is giving it the energy to move it from lower potential to the higher potential. Okay, so conventional current flows from higher potential to lower potential, but the electrons actually flow from lower potential to the higher potential. इसको हमेशा याद रखेंगे। तो when a source of potential difference is connected to a conductor AB, free electrons flow from negative and B to positive and A. This can be termed as electronic current. ये इसको क्या बता सकते हैं हम, this is electronic current. इसका डायरेक्शन कहाँ से है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है ना। That is from lower potential to higher potential, but according to convention
Normally water flows from higher level to lower level, or heat flows from the body at higher temperature to another at the lower temperature. टू मेंटेन द कन्वेंशन, हमने सिर्फ ये जो कन्वेंशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये कन्वेंशनल करंट डिफाइन किया है, जो कि फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential. To maintain this convention, we define conventional current which flows in opposite direction to electronic current, that is along AB, or from higher potential to the lower potential. So this is how actually the current is flowing in the conductor. Okay, so in the next class we'll be studying about something about drift velocity. What is drift velocity, what is the theory behind the drift velocity, and how we'll derive some formulas for drift velocity. Thank you.